This one, just take this one and place it over here and then make it. Just try it. Now make the whole is it possible now? Yes. So what does it signify? A small step makes the changes. So if you are not taking the right step at right time, you will be not able to complete the goal. So that's what this a small quiz signifies. The other one you can, that's another challenge which you can take it offline also. Whenever you're off, that's another challenge. You can try and make pyramid. I'm not taking that on this. Again, you have to complete that pyramid. Pyramid with the same T? No, it's not another game. It's similar to that. In a different box. Yeah, it's similar. But not, you don't have to do this now. You can take it out. I'll explain you that later. So I'll start with why why I did this quiz was, or why I did this was that reason is that you people are just in the beginning of taking these steps, and guiding you. I have made 9 steps to follow so that you can achieve your goals, or you don't fall in prey with people who might mislead you, for which the result might be very, very bad for near future. See, whatever instruments you buy today, whatever decisions you take in the investment industry today, you will be seeing those results 10 years down the line, 15 years down the line, 20 years down the line, or 5 years down the line. So you can't judge what is going to happen today. So for that purpose, why not take precautions? And for this, actually Bombay Stock Exchange, Outlook Money and a network FPA from Bombay has taken this initiative, and my organization is taking that initiative to support on the awareness program. So this is being an awareness program. It's nothing to do with sales or something. It's about awareness so that you people don't fall on those preys. And for this I have taken 9 points which will guide you, which will make you, these are very small steps which will make you understand what to buy and what to take and what steps to take in the future. So for that I have a question for you. How many of you know what is your spendings? कितने लोगों को पता है आपकी spendings है क्या? What? या फिर how much? How much is your spending? What is your spending? Whatever. Expense क्या है आपके? आइडिया है किसी को? किसी को भी नहीं है. एग्जैक्ट आइडियाज किसी को भी नहीं होंगे. और यही रीजंस हैं हमारे सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम कि वी डोंट डू दिस. हम क्या करते हैं? मेरा सबसे पहला पॉइंट है सेव बिफोर यू स्पेंड. और हम कैसे करते हैं? व्हाट डू वी डू? Spend and then हमारे सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बिल्स जाएंगे, हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो जाएंगे. जितने I'll take an example on this. If I take an example of 50,000, आज की डेट में आप में से कोई भी मैं ही अगर 50,000 रुपये आज कमा रहा हूँ, if I'm earning 50,000, what is the thought process? पहले प्रोसेस ये होती है कि 25-30 हज़ार तो हमारे निकल जाएंगे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस में. मैं I'm just taking a hypothetical example कि 30,000 निकल गए मेरे एक्सपेंसेस. अब बैलेंस बच गए 20,000. 20,000 से मैं क्या करता हूँ? उसमें से क्या करूंगा? 5,000 रुपये करूंगा कि चलो लेट्स स्टार्ट विद 5,000 एज ए इन्वेस्टमेंट्स. 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ. 15,000 रुपये किस चीज के लिए रख रहा हूँ? वो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए रख रहा हूँ. देयर इज नो व्यू ऑफ कि मेरे को उसका क्या करना है. और उस 15,000 में से क्या होता है एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ? क्या वो बचते हैं 15,000? नहीं बचते, क्योंकि मैंने क्या किया, वो अपने पास लिक्विड अकाउंट या अपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है जिसमें से मैं फिर एक्सपेंसेस कर देता हूँ. So, सबसे पहला चीज जो करना है that is save before you spend. And have you heard about Warren Buffett? और इसकी सेइंग किसने सुनी हुई है? सुनी होगी सबने. Don't save what is left after spending, but spend what is left after savings. And that is the thumb rule. अगर ये इसका आप 80-70% भी अचीव कर लो ना, you are successful. कि आप लोग पहले अपनी बजटिंग करो. That is most important. इससे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है कि आपको ये तो पता हो कि मेरे एक्सपेंसेस है क्या, जो कि हम लोगों को किसी को भी नहीं पता. टिल द टाइम यू डोंट राइट डाउन दोज थिंग्स, कोई भी चीज जब तक रिटन डाउन नहीं होती तब तक वो अचीवेबल नहीं होती. तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरे है क्या एक्सपेंसेस. एटलीस्ट ऑन द ब्रॉडर साइड यू कैन राइट इट डाउन. सो
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी टेक? हम लोग क्या करते क्या है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, हम इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग्स करते हैं. अच्छा, कोई अच्छा बंदा है जो सेव करता है, वो क्या करता है? इनकम माइनस सेविंग्स, हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं. बट द रियल पर्सन इज हु इज डूइंग द राइट इन्वेस्टमेंट्स. अगर वो राइट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ही इज द रियल पर्सन. बिकॉज अगर आप उसको ग्रोथ की तरफ नहीं डालोगे, पैसे को आइडल रख रहे हो, तो वो ग्रो भी नहीं कर रहा. अगर मैं उसको ऐसी जगह पे पार्क कर रहा हूं जहां पे वो ग्रोथ नहीं हो रही, तो मेरा पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा. अगर इन्फ्लेशन से नीचे चल रहा है, इन्फ्लेशन समझते हैं, यू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन. सो इफ आई एम बाइंग समथिंग फॉर 100 रुपीज टुडे, द वैल्यू ऑफ दैट 100 रुपीज, दैट प्रोडक्ट विल बी 110 रुपीज 1 year डाउन द लाइन. बट उसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? डू यू नो व्हाट इज द एफडी रेट टुडे? क्या है आज एफडी के रेट्स? 6.75, 6.9, 7%. एंड पोस्ट टैक्स रिटर्न्स टू मैं 10%, 20%, 30% भी ले लूं, तो व्हाट आर यू एंडिंग अप विद? 5, 6, 4.5%. That's what you are ending. So are you growing your money? So the real person is who is investing and beating that inflation and growing that money. हमारे पेरेंट्स सब एफडीज की तरफ बोलते थे ना, यही होता था ना, एफडी, पीपीएफ, आप भी यही बोलते हैं, आज भी हमारे उसमें है. बट उसका रीजन क्या है, क्यों कहने का रीजन है, क्या रीजन है? रिस्क फ्री रिटर्न. एनी अदर थिंग? एश्योर्ड, वो रिस्क फ्री हो गई थी, एश्योर्ड है. इसके अलावा क्या रीजन है? उसका रीजन है दैट दे ऑल अर्नड अ लॉट थ्रू एफडीज. उनको वो रिटर्न्स दिखी थी, उन्होंने 13%, 14% की एफडीज देखी हैं, वो तो उसी फ्रूट्स को देख रहे हैं. उनको पीपीएफ ने अगर 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, आज वो 25 लाख हो गए या 30 लाख हो गए, उनको तो वो दिख रहा है. नॉट रियलाइजिंग दैट दे हैव कंपाउंडेड एट 13%, 12% पीपीएफ टैक्स फ्री थी, आज क्या है? सो इज इट सुटेबल फॉर अस टुडे और नॉट? विल बी एबल टू ग्रो दैट लेवल? उनको तो इसीलिए वो बचे हैं आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे 12-13% पे कंपाउंड किया. इन्फ्लेशन वाज 6% एट दैट टाइम. टुडे इन्फ्लेशन, रियल इन्फ्लेशन इज मोर देन 8 to 9%. अगर आप लाइफस्टाइल चीजों के साथ देखोगे तो वो 9% से ऊपर भी जा रही है. तो आप क्या ग्रो कर रहे हो? आप तो एक्चुअली डिमोनेटाइज कर रहे हो. तो आपको ये जरूर है कि एक्चुअल इन्वेस्टर क्या है. यू हैव टू इन्वेस्ट वाइजली, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट आर वी डूइंग? उससे रिलेटेड है कि हम कहाँ एक्सपेंसेस में जाते हैं. क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम अपने लाइफस्टाइल्स को इंप्रूव करते हैं, विच इज दिस. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट फुलफिल योर डिजायर्स और ड्रीम्स, बट अगर आप अपने डिजायर्स को गोल ओरिएंटेड कर लेते हो, उसको बना के चलते हो कि मेरे को ये 3 साल बाद लेना, हाउ कैन आई अचीव इट, देन आई कैन अचीव इट. बट मैं लोन्स और लाइबिलिटीज के साथ इसको लेता हूं, तो दैट्स नॉट राइट. व्हाट वी आर हेडिंग टू इज व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज आर हेडेड टू, एंड व्हाट आर देयर, वेयर आर दे स्टैंडिंग नाउ? ऑन वीकली डेट्स. वो तो वीकली पैसे निकालते हैं और आगे दे देते हैं, वीकली निकालते हैं और दे देते हैं. दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू. बट वहां पे और हमारे यहाँ डिफरेंट है. वहां सोशल सिक्योरिटी है, हमारे पास कुछ नहीं है. वी हैव टू क्रिएट आवर ओन कॉर्पसेस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो विच वी हैव टू थिंक अबाउट. दिस इज द मोस्ट करप्ट थिंग जिस पे हम डिपेंडेंट हो रहे हैं. मैं ये नहीं कहता, दीज आर हाउ यू हैव टू टेक गुड लाइबिलिटीज की तरफ आपने लेना है. यू वांट टू स्टार्ट अप सम कंपनी, यू वांट टू क्रिएट सम इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स अ गुड साइड. आपने रेजिडेंशियल हाउस बनाना है अपने लिए, रहने के लिए बनाना, दैट्स अ गुड लाइबिलिटी. बट बैड लाइबिलिटीज क्या है? मोबाइल फोन्स नए आए, लेटेस्ट से लेटेस्ट आए, डिस्करेज नहीं कर रहा, बट यूटिलिटी है तो खर्च करो, अदरवाइज डोंट स्पेंड ऑन दोस थिंग्स. सो इफ यू नो दोस एक्सपेंसेस, इफ यू नो योर गोल्स, then only you'll realize these things. I'll take in further slides how you have to achieve those goals and all. So if you buy things today which you don't need, someday you'll be selling those things to get the basics. So Warren Buffett, इसके quotes जो हैं, just you know these quotes. I don't have to repeat those things. You know, you have seen, you have heard, but have to cultivate in your systems. This is very important. आप आज ऐसी ऐसी चीजें, और होता है, आप इफ यू लाइफ टाइम में आप अपने पास देखो, ऐसे ऐसे मोबाइल पड़े हैं 25-25 हज़ार के जो आज जीरो वैल्यू रख रहे हैं, है कि नहीं है? और हम फिर उसकी तरफ ल्योर हो जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, park aside an emergency fund. That's the second point. That's very very important. Why I said so? When I asked you that
out of that example I was taking, that 50,000 example, या उस एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं कि 20,000 रुपये हमारे पास बचे हुए थे, 20,000 वी आर लेफ्ट विद, दैट 20,000 इफ वी have invested, we just parked 5,000 and rest 15,000 we have kept into our saving bank. वो क्यों रखे थे हमने, उसका रीजन क्या था? मैंने उस समय बोला था, if anybody can say, कि क्या रीजन था वो 15,000 रखने? फॉरेन इमरजेंसी, लिक्विड कैश है, लिक्विड कैश, कि मेरे पास कंटिजेंसी फंड रखना है ना, वही मेरा रीजन था। पर वो कंटिजेंसी की तरफ काम तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। वो क्या आ रहा, मेरे बैंक में पड़ा रहता है और मैं उसको खर्च कर देता हूँ। दिस इज विद ईच एंड एवरीबडी। आप किसी की लाख रुपए की सैलरी है, किसी की 50,000 की सैलरी है, किसी की 2 लाख की सैलरी है, या किसी की कुछ भी इनकम, वो एंड ऑफ द डे उसके सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो मंथ एंड या 2 मंथ्स एंड या 3 मंथ्स एंड ही इज आइदर रिड्यूसिंग इट, या वो थोड़ा होके किसी 6 महीने बाद उसकी एफडी कर देते हैं या साल बाद एफडी कर देते हैं। व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? सो इट्स लाइंग आइडल इन योर सेविंग बैंक व्हिच इज गिविंग यू 4%, 3.5% पोस्ट टैक्स, वो भी और कम होगा। So are we keeping our money grow? No, we are not growing our money. हम उसको सही जगह पे प्लेस क्यों नहीं कर रहे? Why are not we keeping our contingency fund separately?